Hello everyone, welcome to Learning and Solution. And here we are ready with the textual question answers of the Summer of the Beautiful White Horse, lesson 1 of your supplementary reader snapshots. Actually, the textbook does not carry questions in it, so questions have been formulated to help you all understand the crux of the story and answer the possible questions that are set in the examination. The first question: when did Murad come to Aram's house and why? Murad came to Aram's house at 4 in the morning. You can write 4 in the morning या आप 4 a.m. लिखोगे वो भी ठीक है. Because Murad had brought a horse. He also knew that it was Aram's dream to ride a horse, so he came to offer him a ride on the horse. तो आरम का ड्रीम है हॉर्स राइड करना, इसीलिए मुराद ने जब एक हॉर्स स्टील कर लिया तो ही टुक इट देयर सो दैट हिज कजन कैन ऑल्सो राइड और उसकी भी जो इच्छा है, जो ख्वाहिश है, वो पूरी हो जाए. Which tribe did Aram belong to? What was the true aspect of their tribe for which they were famous? एक simple question है, direct question है, but what we need to understand is that we have to learn the spelling of Garoglanian. Garoglanian के spelling याद रखना बहुत ही ज़रूरी है because इसके spelling में बहुत ज़्यादा time error हो जाती है. Aram belonged to the Garoglanian tribe. They were famous for their honesty. Seeing Murad riding a horse, why was Aram delighted and frightened? ये बहुत ही important आपका examination question है. Usually it is set in the examination. Now there were two reasons for his being delighted, that he got a chance to fulfill his dream. He wanted to ride a horse. इसके बारे में वो खूब सपने देखता था. और दूसरी बात, क्योंकि वो पुअर थे तो हॉर्स राइडिंग और हॉर्स खरीदना तो बहुत ही दूर की बात थी. ही वॉज फ्राइटन बिकॉज उसको ये डर था कि मुराद ने कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया जिससे कि फैमिली का नाम खराब हो. उसने कहीं सच में चोरी तो नहीं कर ली है. उसको ये हॉर्स कहाँ से मिला, ये डर आरम के अंदर बहुत था. सीइंग मुराद राइडिंग अ हॉर्स, मैंने क्वेश्चन से ही पिक किया है. Aram was delighted because, हम पहले delight क्यों था उसका आंसर देंगे, because he got a chance to fulfill his dreams. He had a strong desire to ride a horse. He was frightened as he thought Murad might have stolen the horse. He must have done something unethical. ये एक अच्छा word है which should be remembered. He must have done something unethical or amoral, something which is not allowed as per the moral standards of a person. अगर आपने कुछ भी ऐसा किया है जो एक moral standard को adhere नहीं किया, आपने उससे हटके किया है, तो वो एक unethical चीज मानी जाती है जो कि ठीक नहीं है. You can use any one word. आप या तो unethical यूज करो या amoral यूज करो. Both are equally correct. Why did Aram think that the way Murad had the horse was not stealing? This is also a very important examination question. अक्सर एग्जाम में सेट हो जाता है. आरम ने क्यों सोचा कि जिस तरीके से मुराद को ये हॉर्स मिला है ये स्टीलिंग नहीं हो सकती. स्टीलिंग इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये स्टीलिंग जो है तभी होगी अगर हम हॉर्स को बेचेंगे और मनी ले लेंगे. ये उसका एक पॉइंट था, आर्ग्यूमेंट. सेकेंड उसका थॉट था कि चोरी तभी होती है अगर हम पैसों की चोरी करें. हॉर्स की चोरी करना इज नॉट स्टीलिंग. थर्ड, किसी ऐसे पर्सन को जिसका पैशन है, जिसका डिजायर है इंटेंस हॉर्स राइडिंग करना, अगर वो किसी का हॉर्स ले रहा है तो वो चोरी करना नहीं हो सकता.
because Aram was young and he wanted to ride a horse very badly, इसीलिए वो अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो मुराद ने किया वो एक्चुअली में स्टीलिंग नहीं है. नाउ लेट्स वीव ऑल दीज वैल्यू पॉइंट्स इनटू आवर आंसर. Aram thought that the way Murad had the horse was not stealing, as it was not like stealing money. अगर money steal करेंगे तभी stealing मानी जाएगी. It would be stealing if they tried to sell the horse, which they would never do. अगर इस horse को sell कर money लेने की कोशिश की जाए तो वो एक स्टीलिंग मानी जाएगी. वो कभी हॉर्स को बेचेंगे नहीं, तो ये स्टीलिंग नहीं है. ऑल्सो ही थॉट दैट दे वर सो क्रेजी अबाउट राइडिंग अ हॉर्स इट कुडंट बी स्टीलिंग. एक्चुअली ही वॉन्टेड टू राइड द हॉर्स सो बैडली. इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर थी उसके मन में दैट ही कन्विंस्ड हिमसेल्फ दैट दे weren't स्टीलिंग. उन्होंने चोरी नहीं करी है. Did the boys return the horse because they were conscience stricken or because they were afraid? Justify. This is your textual question also. कि क्या उनकी कॉन्शियंस, उनकी अंतरात्मा उन्हें झकझोर रही थी इसलिए उन्होंने ये वापस किया हॉर्स, या इसलिए किया क्योंकि वो गिल्टी कॉन्शियस थे? अब पहली बात तो ये है कि उन्होंने ये हॉर्स इसलिए वापस किया क्योंकि वो कॉन्शियंस स्ट्रिकन थे. उन्हें इस बात से बहुत ज़्यादा वो प्रभावित हुए थे कि जॉन बायरो ने उन्हें एक्यूज नहीं किया, उन्हें ब्लेम नहीं किया डायरेक्टली. ही स्ट्रेट अवे सेड दैट आई हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन योर फैमिली एंड फैमिली वैल्यूज. मैं आपकी फैमिली को इतने अच्छे तरीके से जानता हूं दैट आई कैन नॉट बिलीव दैट यू पीपल हैव स्टोलन द हॉर्स. Next, he also knew that this horse is quite similar to his horse. तो ये जानने के बावजूद कि ये हॉर्स मेरा ही हॉर्स है, इतना सिमिलर एक और हॉर्स नहीं हो सकता, वो सिंपली वहां से चला गया ये कहकर कि वो उनकी फैमिली में बहुत फेथ रखता है, उनकी रेपुटेशन में बहुत फेथ रखता है. सो दिस मेड देम वेरी वेरी गिल्टी. डर नहीं था उन्हें किसी का भी, वो बहुत ज्यादा गिल्टी हो गए, बहुत ज्यादा उनकी कॉन्शियंस जो है वो झकझोर दी गई इस बात से कि जॉन बायरो ने हमें बिल्कुल भी ब्लेम नहीं किया कि ये हॉर्स मेरा ही है और तुमने चोरी करी है. अभी इन्हीं पॉइंट्स को अगर हम वीव करें एक आंसर में, तो द बॉयज रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर कॉन्शियंस स्ट्रिकन. जॉन बायरोस प्योरिटी ऑफ हार्ट, वो इतना प्योर था, इतना सिंपल बंदा था, इतना साधा बंदा था कि वो pricked their conscience, it touched them. He was very sure that it was his horse. उसको पता था कि ये मेरा ही हॉर्स है. He did not accuse the boys for stealing his horse. Rather, he said that the horse was the twin of his horse. एक आर्ग्यूमेंट भी दे गया कि हाँ चलो ठीक है, ये हॉर्स बहुत सिमिलर है तो मेरे ही हॉर्स का क्या पता ये ट्विन हूं. His faith in the reputation of their tribe for being honest made them feel guilty and they returned the horse. जब उन्हें ये पता चला कि इसकी इतनी ज़्यादा फेथ है हमारी फैमिली के अंदर, हमारी फैमिली वैल्यूज के अंदर, हमें ये हॉर्स उसको लौटा देना चाहिए. How did Aram justify Murad's crazy streak? आरम ने ये बात कैसे जस्टिफाई करी कि मुराद जो है वो बहुत ज़्यादा क्रेजी था, मन मौजी था, उसके अंदर ये कैरेक्टर ट्रेट कैसे आया? तो इस बात के लिए एक पूरा पैराग्राफ है हमारे लेसन में जहाँ पर उसने ये आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है हमें कि क्यों वो एक ये उसके अंदर ये वाले ट्रेट्स कहाँ से आए.
तो जो पहला आर्ग्यूमेंट वो देता है दैट इज दैट ही इज द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ अंकल खसरौ। जैसे अंकल खसरौ इम्पेशेंट हैं, जैसे अंकल खसरौ बहुत ही कैजुअल हैं, बहुत ही मनमौजी तरीके के इंसान हैं, वो उन्हीं का ही वंशज है, इसीलिए ये भी ऐसा केयरफ्री है, इतना मनमौजी है। एंड सेकेंड रीजन दैट ही गिव्स इज दैट अ पर्सन कैन बी फादर ऑफ सन्स फ्लैश, not the spirit. That in their tribe it is kind of now known कि एक पर्सन जो है वो अपने बेटे का, अपने बच्चे का सिर्फ बॉडी और फिजिकल एट्रीब्यूट्स में उसका जो है योगदान हो सकता है बायोलॉजिकल, लेकिन वो उसकी स्पिरिट को जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। जो बच्चे की फितरत है, जो बच्चे की बेसिक नेचर है, वो तो किसी और पे जाती है। एक बच्चा अपने फादर का नेचर, अपने फादर की इंस्टिंक्ट्स नहीं लेता, बस सिर्फ उनसे उनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स लेता है। इनकी ट्राइब में ये कुछ ऐसा ही ट्रेंड है। दिस इज व्हाट आरम टेल्स अस। आरम justified Murad's crazy streak by suggesting that firstly he was the natural descendant of Uncle Khosrow। वो अंकल खुसरौ की फैमिली में था, उनका वंशज था, तो उनके ट्रेड्स तो उसके अंदर आने ही आने थे। सेकेंडली, according to him, in their tribe a person can be the father of his son's flesh but not the spirit। इसी बात को आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, that a person can give physical attributes to his child, but the child will not inherit his instinct or behavior। If you want to write the same sentence in your own words, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, both are equally correct। The next question, Uncle Khosrow was an impractical man। comment। तो वो क्यों impractical थे? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इंस्टांसेस हैं हमारे चैप्टर में which tell us that he was an impractical man। Firstly, we come to know about his impracticality when his house is on fire and his son comes and tells him that our house is on fire, and he shouts literally that pay no attention to it। Then when John Barrow is upset about the loss of the horse, he again says that pay no attention to it। John Barrow ये explain करते हैं कि मेरी सरे का क्या होगा, मेरी सरी जो है वो बिल्कुल ही यूजलेस हो चुकी है। तो वो उसके आर्ग्यूमेंट को से सेटिस्फाइड नहीं है, उल्टा और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं जब जॉन बायरो ये कहता है कि मुझे 10 मील तक चल के आना पड़ा। तो ही सेज क्या तुम्हारे पास लेग्स नहीं है, आप वॉक करके नहीं आ सकते क्या? तो जॉन बायरो बताता है कि मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है। आप एक सिटी में रहने वाले हो, आपके लिए एक बग्गी का, एक सरी का शायद यूज ना हो, पर मेरे लिए बहुत यूज है और मेरे हॉर्स के बिना मेरा काम नहीं चल रहा। इतने इम्प्रैक्टिकल इंसान है कि कहते हैं कि मैं तो इतना हम अपना होमलैंड खो चुके हैं, अपने पैसे गवा चुके हैं, एक छोटे से हॉर्स के खोने पे इतना परेशान क्या होना, और मैं तो पैसों पर थूकता हूँ। He says I spit on money। So this shows that he is impractical and he is an irrational man। Fine। And then when John Barrow finds the horse, he still says that pay no attention to it। He is all the time irritated and he doesn't want to actually be in a happy state। तो हर वक्त एक इंसान अगर गुस्से में है, हर वक्त फ्रस्ट्रेटेड है, हर वक्त इरिटेटिंग बातें कर रहा है, तो वो एक इम्प्रैक्टिकल इंसान ही
कहलाएगा। इन्हीं सभी पॉइंट्स को अगर हम एक आंसर में वीव कर दें तो हमारा एक अच्छा आंसर, आइडियल आंसर बन जाएगा। एंड दिस आंसर इज एक्चुअली a 6 mark long answer. You can pick up the points and cut short them for a 2 mark answer if at all it is set in a 2 mark question. As a 6 mark question, these points are enough for you to score full marks. Uncle Khosrow was an impractical and insensitive man. Once when his son came and announced that his house was on fire, he shouted, "Pay no attention to it. It is no harm." He became irritated when John Byro was upset about the loss of his horse. He said that when they lost everything, what is the need to worry for the loss of a horse? When John Byro said that he had to walk 10 miles to reach their house, he replied that he had legs to walk and he shouldn't pay attention to the pain in the legs. अगर पैरों में दर्द हो रही है तो उसको attention मत दो. When John Byro was happy about getting his horse back, Uncle Khosrow became restless and said that he shouldn't pay attention to it. Another question that can be picked up in this particular chapter is that how did the horse react every time when Aram tried to ride it? So if we try to think about the answer, firstly, it didn't move at all. Next time, what happened? Murad told Aram that kick into the muscles of the horse, and the horse just snorted and it started running wildly. It started running wildly. Every time it used to enter the vineyards, entered vineyards, get stuck in 6 to 7 vines, and finally what happened? Aram would fall from its back. This was the experience of how Aram used to try to ride the horse, but eventually he was not able to do so. हर बारी वो घोड़े को राइड करने की कोशिश करता था और हर बारी वो उससे गिर जाता था, और जब तक ये चैप्टर फिनिश हुआ, Aram was not able to ride the horse. That's all for the question answers of this particular chapter. Keep watching and hope for having more enriching sessions.